Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, today we are moving on to question number 2 of part A, which is fill in the blanks. Okay, the question is fill in the blanks with suitable words from the story. Fill in the blanks with suitable words from the story. अब सूटेबल वर्ड्स तक तो ठीक है, हम कोई भी वर्ड लगा के इसको कंप्लीट कर सकते थे, बट यहाँ पर इन्होंने शर्त ये रखी है कि यू हैव टू फाइंड द वर्ड इन द स्टोरी, जो इस सिचुएशन के लिए जो वर्ड स्टोरी में यूज़ हुआ है वही वर्ड आपने यहाँ पर यूज़ करना है और कोई नहीं करना, ठीक है. सो द फर्स्ट ब्लैंक इज़ Anansi was a trickster and he was having a dash time. Anansi was a trickster and he was having a dash time. Anansi was a very bad person. He was a wicked person and he was having a dash time. आपको स्टोरी के शुरू में बताया था what kind of a time he was going through. Difficult time. Very good. Difficult time. Anansi was a trickster and he was having a difficult time. Now the second statement is Anansi dashed through a gap in the witch's fence. Anansi dashed through a gap in the witch's fence. अच्छा, अब यहाँ पर आपको पिक्चर याद होगी, उसके ज़रिए आपको उसकी वजह से आपको कुछ वर्ड्स जहन में खुद से आ रहे होंगे, जैसे एनांसी लुक्ड थ्रू द गैप इन द विचेस फेंस. बट जो वर्ड स्टोरी में यूज़ हुआ था वो है पीक्ड. लुक्ड और पीक्ड ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है. झांकना और देखना, मतलब झांक के देखना या देखना, वो एक ही बात है. तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम में ये लिखना चाहो तो वहाँ तो आपको स्टोरी नहीं दी, स्टोरी में से फाइंड आउट करने का कुछ है नहीं, तो आप अपने अल्फाज में इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है, यानी लुक्ड लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर चूँकि बुक में ये रिक्वायरमेंट है कि आप लोग स्टोरी ही में से वर्ड फाइंड आउट करके यहाँ लिखेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर पीक्ड लिखूँगी. पीक्ड. Anansi peeked through a gap in the witch's fence. Anansi peeked through a gap in the witch's fence. Okay, the next statement is he imagined what dash food he would find. He imagined what dash foods he would find. अच्छा, फूड के लिए हमारे जहन में अक्सर आता है टेस्टी फूड, ठीक है, वैरायटी ऑफ फूड भी आता है जहन में, लेकिन जो स्टोरी में वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है डिलिशियस. डिलिशियस मीन्स टेस्टी, मज़ेदार, ठीक है. डिलिशियस. ओके, ही इमेजिन्ड व्हाट डिलिशियस फूड ही वुड फाइंड. He imagined what delicious foods he would find. The next statement is a dash sound pulled Anansi from his daydream. A dash sound pulled Anansi from his daydream. Answer is scurrying. Scurrying sound. A scurrying sound pulled Anansi from his daydream. अच्छा, स्करिंग साउंड का मतलब है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्करिंग का मतलब चलते चलते जो पाँव से आवाज़ निकलती है, तेज़ चलते चलते जो स्करिंग साउंड होती है वो होती है, ठीक है. तो तेज़ चलते चलते जो आपके पाँव से जो आवाज़ आती है या जो दूसरों को सुनाई देता है, आपकी जो आमद का एहसास होता है,
वो scurrying साउंड होता है, ठीक है. A scurrying sound pulled Anansi from his daydream. She walked to the dash mound. She walked to the dash mound and stood on it. And stood on it. She walked to the dash mound and stood on it. ये बहुत ईजी है. नियरेस्ट माउंड, जो सबसे नज़दीक आता था वो नियरेस्ट माउंड. She walked to the nearest mound and stood on it. She walked to the nearest mound and stood on it. Anansi dashed and showed all his sharp teeth. Anansi dashed and showed all his sharp teeth. Anansi grinned. Anansi grinned. अच्छा, grin is kind of smile, तो यहाँ पर smiled भी लिख सकते हैं, ठीक है. Smiled brightly, grinned. Anansi grinned and showed all his sharp teeth. Okay, these were some of the blanks, and now I'm moving on to the next fill in the blanks, which is on page number 31. Page number 31. Okay, see if you can find the answers of the following descriptions. Unscramble these 4 words to use in the spaces. अच्छा, आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है येलो कलर का, आपको नज़र आ रहा होगा. इसमें कुछ स्पेलिंग्स लिखे हुए, लेकिन इन स्पेलिंग्स की कोई समझ नहीं आ रही. और असल में ये जो स्पेलिंग है, इनको करेक्ट करने से हमारे पास यहाँ का आंसर आएगा. तो ऐसा करते हैं कि पहले हम इन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, क्या पता हमें आंसर का अंदाज़ा यहीं से हो जाए, फिर हम इनको करेक्ट कर सकेंगे, ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हु आर सिक. वो इंसान जो बीमारों का इलाज करता है. ट्रीट्स मतलब इलाज करता है, सिक बीमार को कहते हैं. अ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हु आर सिक, वो बंदा जो बीमारों का इलाज करता है, वो कौन होता है? डॉक्टर. अच्छा, यहाँ पर कौन से स्पेलिंग्स में आपको लगता है कि ये डॉक्टर होगा? ये यहाँ तो डी है ही नहीं, यहाँ डी है लेकिन बाकी स्पेलिंग नहीं है. ये DOCTOR, तो ये पूरे स्पेलिंग है. यहाँ पर इसको करेक्ट करके भी लिखेंगे, बल्कि यहीं पे सिर्फ करेक्ट करके लिख लेते हैं, ये दैट्स इनफ, ठीक है. यहाँ पर करेक्ट करके इसका आंसर लिख लेते हैं. डॉक्टर, डॉक्टर. ओके. अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल इन अ हॉस्पिटल इज़ अ. अच्छा, लुक आफ्टर का मतलब है ख्याल रखना. तो हॉस्पिटल में जो मरीज़ होते हैं उनका ख्याल रखने के लिए कौन होता है? लुक्स आफ्टर पीपल इन अ हॉस्पिटल इज़, वेरी गुड, अ नर्स. नर्स. नर्स के जो स्पेलिंग मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये है, ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग स्पेलिंग है. इसको करेक्ट करके हम अभी यहाँ पर लिखेंगे. एक और बात जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ये वाले जो ब्लैंक्स हैं ये अक्सर पेपर में आते हैं, तो जब भी मैं देखती हूँ तो कुछ बच्चों से ये कन्फ्यूजन सी उनको के जहन में पता नहीं कहाँ से आती है कि हॉस्पिटल का ताल्लुक़ डॉक्टर से ही है. तो जब वो देखते हैं लुक आफ्टर पीपल इन अ हॉस्पिटल, तो बस वो वहाँ डॉक्टर लिख देते हैं. तो ये गलत है. लुकिंग आफ्टर इज़ द जॉब ऑफ नर्स, ट्रीटमेंट इज़ द जॉब ऑफ डॉक्टर, ठीक है. डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, वो लुक आफ्टर नहीं करता. लुक आफ्टर के लिए वहाँ पर नर्सेज होती हैं, ठीक है. आपका ख्याल रखती है, टाइम पे ड्रिप चढ़ाती हैं, टाइम पे इंजेक्शन देती हैं, टाइम पे आपको मेडिसिन देती हैं, और फिर आपको जब घर जाने के काबिल हो जाते हो तो आप घर चले जाते हो, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न इज़.
ये सबसे इजी इसलिए क्योंकि ये इसमें कभी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं आई. A person who helps children to learn is very good. A teacher. 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 ये जो रॉन्ग स्पेलिंग लिखे हुए ये इन्होंने टीचर के लिए लिखे हैं. So let's unscramble them. Okay, the fourth and last one is a person who looks after people's teeth. Okay, looks after people teeth, लोगों के दांतों का ख्याल रखता है. तो वो कौन होता है? वो भी काइंड ऑफ डॉक्टर होता है, बट मतलब दांतों की बीमारियां ज़्यादातर इतनी ज़्यादा नहीं होती. तो ज़्यादातर लोग जो वहाँ पर आते हैं तो वो उसका मतलब सफाई और बाकी चीज़ों के लिए आते हैं, फिलिंग के लिए आते हैं. तो दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ बीमारी, ये डिसीज़ नहीं है. तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड लुकिंग आफ्टर. ठीक है, आपके दांतों को सफाई की ज़रूरत है या फिर उसमें फिलिंग की ज़रूरत है या फिर उसको निकालने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा है तो दैट इज़ कॉल्ड लुकिंग आफ्टर, ख्याल रखना. अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल्स टीथ, दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? वेरी गुड, डेंटिस्ट. डेंटिस्ट. Okay, these were the blanks. Now let's move on to the next question, which is almost the same as given before, above. जो अभी हमने डॉक्टर, नर्स, टीचर से रिलेटेड ये जो अभी ब्लैंक्स किए बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमें नीचे करना है. बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स नहीं दी है, सिर्फ पिक्चर्स दी है. हमने प्रोफेशन मालूम करना है. Now look at these pictures. We are starting from the left side, and here we can see a man holding a broom in his hand. A man is holding a broom in his hand. What do we call this man? We call him a sweeper. Sweeper. Okay, this is sweeper. A person who sweeps the houses is called sweeper. अच्छा, ये सिर्फ हाउसेस के लिए नहीं होते, बाहर जो रोड साइड्स होती हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से, टीएमए की तरफ से स्वीपर्स होते हैं. और पार्क्स वगैरह के लिए या फिर जो रोड साइड्स होती हैं, गली मोहल्ले, उससे जो कलेक्ट करते हैं, तो ये सारे स्वीपर्स होते हैं. अच्छा, द पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. द पर्सन हु सेल्स vegetables and fruits, what do we call him? Grocer. Grocer. Okay. ये नहीं होता कि आप ये नहीं ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप फ्रूट सेलर नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो फूड आइटम्स बेचते हैं तो उनको ग्रॉसर्स कहा जाता है. ठीक है, जहाँ पर आपके जो खाने पीने की तमाम किस्म की चीज़ें मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉसरी. और ऐसे शॉपकीपर को ग्रॉसर कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द पर्सन हु मेंड्स आवर शूज़. मेंड्स रिपेयर को कहते हैं, मतलब फटी हुई चीज़ को दोबारा सेट करने वाले को वो कहते हैं, रिपेयरर कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमारे शूज़ को मेंड करता है, जो हमारे शूज़ को रिपेयर करता है, उसको क्या कहते हैं? कॉबलर. 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 एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इजी बिकॉज यहाँ पर आप कार के ऊपर आपको टैक्सी नज़र आ रहा है, तो द पर्सन इज़ कॉल्ड टैक्सी ड्राइवर. A person who drives a taxi is called taxi driver. Okay, the last one is a police officer, or you can say a policeman. Policeman. Policeman.
अच्छा, इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन पुलिस है। इसको उर्दू में पुलिस कहा जाता है। तो पुलिस को अक्सर बच्चे इंग्लिश में भी यहाँ पर पुलिस कह रहे होते हैं, तो ये पुलिस नहीं है, पुलिस है। ओके, पुलिस। पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। Okay, this was all for today. I hope you learned and enjoyed. Today we did only fill in the blanks from the exercise, and they were 9. And we identified the pictures of different professions. तो आपने क्या करना है कि आपने इसके अलावा कुछ और प्रोफेशंस की लिस्ट बनानी है। ठीक है, आपका आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आप कुछ और प्रोफेशंस के, मतलब यहाँ डॉक्टर, नर्स, टीचर, स्वीपर, ग्रॉसर, कॉबलर और टैक्सी ड्राइवर हो गया। इसके अलावा आपको जिन प्रोफेशंस का पता है, आप 5 प्रोफेशंस की लिस्ट बनाएंगे और उनके साथ उसकी जो जॉब है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो भी साथ में लिखिएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि अ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हु आर सिक, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल इन अ हॉस्पिटल। इस तरह आप भी लिख सकते हो कि अ पर्सन हु फ्लाइज एयरप्लेन इज़ कॉल्ड अ पायलट, या फिर इंजीनियर का आप लिखें, या फिर आप जो भी लिखना चाहें। तो उसके साथ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखें, 5 प्रोफेशंस का नाम और उसके साथ उनकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, so I hope you learned and enjoyed. This was all for today. Wish you best of luck. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.